آج کا ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہم اسٹیٹ کے بارے میں پڑھیں، اسٹیٹ کیا ہوتی ہے اور اس اسٹیٹ کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ریئیکٹ کے کمپوننٹ کے اندر یا میں پڑھیں. سو اسٹیٹ از اے وے ٹو مینیج ڈیٹا دیٹ کین چینج اوور ٹائم ان ریئیکٹ کمپوننٹ. ریئیکٹ کے اندر جب آپ کو ڈیٹا کے پیسز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایسے پیسز ہوں کہ جب وہ چینج ہوں تو ریئیکٹ کے کمپوننٹ ان کو آٹومیٹیکلی ری رینڈر بھی کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایکچولی ایک ویریبل کی طرح کی چیز ہے اسٹیٹ، جس میں آپ کچھ ڈیٹا رکھتے ہیں اور اس ڈیٹا کو آپ جب بھی سیٹ کرتے ہیں، مطلب جب اس کی ویلیو کو کبھی چینج کیا جاتا ہے تو جس کمپوننٹ میں وہ اسٹیٹ ہوتا ہے وہ والا کمپوننٹ دوبارہ ڈرا کر دیا جاتا ہے تاکہ ریئل ٹائم ڈیٹا دکھایا جا سکے. Unlike prop, state is mutable and controlled within the component. State جو ہے وہ mutable ہے. کل ہم نے پڑھا تھا props جو ہے وہ immutable ہوتے ہیں، مطلب ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا. state کو چینج کیا جا سکتا ہے اور component کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ریئیکٹ پہ اگر آپ کو کبھی کچھ ایسا بنانا ہے کہ ایک بٹن کا کاؤنٹ ٹریک کرنا ہے کہ میں اس کو کلک کرتا جاؤں تو وہ بتائے کہ کتنی بار کلک ہوا، تو یہ کام ہم ویریبل پہ نہیں کر سکتے ریئیکٹ کے اندر، اور اسٹیٹ پہ کرنا پڑے گا. میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل بھی دکھاؤں گا پھر یہ سمجھ آئے گا. تو ہم چلتے ہیں اپنے پروجیکٹ پہ. ہمارا پروجیکٹ تھا آئی گیس فرسٹ پروجیکٹ اسٹیٹ ہم نے پڑھنا ہے. تو میں یہاں پہ ایک نیا کمپوننٹ کے ساتھ اس کام کو کرتا ہوں. میرا ایپ ہے، چلو پہلے ایپ کے اندر ہی کر لیتے ہیں. لیٹ سے ہمارے پاس ایک بٹن ہے ان کو ٹائپ، ہمارا بٹن اور میں نے بٹن کے آن کلک کے اوپر ریئیکٹ کے سینٹیکس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اب جو ہے وہ کیمل کیس یوز ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں آن کا او چھوٹا ہے، کلک کا سی بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح لکھا رہے گا ہمیشہ جب بھی کوئی ایٹریبیوٹ اس طرح کا ہوگا جس کے دو نام مل کر آ رہے ہوں. اب میں نے کبھی اس پہ جو فنکشن کال ہوگا اس کا نام ہے فار ایگزامپل ہینڈل کلک. ٹھیک ہے، یہ ایک فنکشن کال ہوگا اس بٹن کے کلک، اور اس کی جو ویلیو ہے وہ میں نے کہا کاؤنٹ کر کے ایک ویریبل ہوگا وہ پرنٹ کرے. تو میں ایپ کے لیول پہ ایک ویریبل ڈکلیئر کرتا ہوں جس طرح ہم کرتے ہیں لیٹ کاؤنٹ اکوس ٹو زیرو. تو یہاں پہ زیرو لکھا ہوا جائے گا نیچے، بالکل صحیح. اور میں نے کہا جی ایک فنکشن بنا لیتے ہیں ہم ہینڈل کلک کا. یہ کیا کرے گا، یہ کاؤنٹ کو انکریمنٹ کرے گا، تو کاؤنٹ کی ویلیو انکریمنٹ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے یہ بات جو کوڈ میں نے بھی لکھا ہے. ایپ کے اندر میں نے ایک ویریبل بنایا کاؤنٹ، اس کی ویلیو زیرو ہے، اور پھر میں نے کہا ہینڈل کلک کاؤنٹ کو انکریمنٹ کرے گا، مطلب 1 2 3 4 ہوتا رہے گا جب کلک ہوگا ہینڈل کلک کی وجہ سے، اور ویلیو میں کاؤنٹ لکھا ہوا ہے. اگر ہم اس ایپلیکیشن کو چلاتے ہیں جی بیچ 3، اور اس میں ہمارے پاس فرسٹ پروجیکٹ ہے، اس کو میں نے npm اسٹارٹ کرو. تو دیکھیں پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا، ایپ کے اندر ایک بٹن آئے گا جس پہ ویلیو زیرو آ رہی ہے. اب میں جب جب اس کو کلک کر رہا ہوں تو یہ کاؤنٹ کی ویلیو کو بڑھا رہا ہے، لیکن دیکھو ویلیو میں یہاں کاؤنٹ بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، حالانکہ میں اگر پروف کرنا چاہوں کہ کاؤنٹ کی ویلیو بڑھی تو میں کیا کروں گا، کنسول پہ پرنٹ کر دیتا ہوں جو بھی کاؤنٹ کی ویلیو. تو دیکھو میں نے یہاں پر آ کے کنسول ڈاٹ لاگ کیا کاؤنٹ کی ویلیو. تو آپ دیکھیں گے کہ جب جب میں اس کو کلک کر رہا ہوں کاؤنٹ کی ویلیو بڑھ رہی ہے نا، کاؤنٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. لیکن یہاں پر کاؤنٹ کی جو ویلیو ہے وہ ہمیشہ زیرو ہی ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب یہ کمپوننٹ پہلی بار ڈرا ہوا تھا اس وقت اس ویریبل کی ویلیو کیا تھی، زیرو، جو کہ یہاں پرنٹ ہو گیا بس. اب جب جب اس پہ کلک ہو رہا ہے کاؤنٹ کی ویلیو تو بڑھ رہی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں آ رہا کیونکہ یہ والا پارٹ دوبارہ ریڈ نہیں کیا جا رہا. ابھی صرف یہ والا پارٹ پڑھا جا رہا ہے جاوا اسکرپٹ میں جو کہ کاؤنٹ کی ویلیو کو بڑھا رہا ہے. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ ہمارا نارمل ویریبل. اب یہ اتنا سادہ سا کام جو ایک ویریبل کے کاؤنٹ کو رکھنا ہے وہ ریئیکٹ میں کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کہ وہ
काउंट की वैल्यू को तो बढ़ा रहा है लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा। रीजन क्या है कि ये जो हमारा कंपोनेंट है रीड रॉ नहीं हो रहा। अब इसके लिए हमारे पास जो हल है वो क्या है, वो है स्टेट्स। स्टेट क्या होते हैं, ये कंपोनेंट बेस्ड पीस ऑफ डेटा होता है, ठीक है, स्टेट की तरह। और इसको डिक्लेयर करने के लिए एक रिएक्ट की इंटरनल फंक्शनैलिटी है जिसको हुक्स कहते हैं। तो एक हुक है, बहुत सारे हुक हैं रिएक्ट के अंदर, जिसमें से एक हुक हम इस्तेमाल करते हैं स्टेट को बनाने के लिए, उसको यूज स्टेट कहते हैं। स्टेट कैसे बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं इस काउंट के वेरिएबल के मुकाबले में। मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। स्टेट बनाएंगे, स्टेट बनाने के लिए हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे और उसको एज अ एरे डिक्लेयर करेंगे, इस तरह से काउंट। ये हो गया वेरिएबल का नाम, और कॉमा लगाएंगे और सेट काउंट करके एक फंक्शन का नाम दे देंगे इक्वल टू यूज स्टेट। देखिए यूज स्टेट एक हुक है, इसको मैंने इंपोर्ट किया तो देखिए ऊपर एक इंपोर्ट आ गई, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, स्टेट आ गई। ये दोनों चीजें इस्तेमाल की मैंने हटा दूं, ठीक है, रिएक्ट में से यूज स्टेट का हुक आ गया। ये तरीका है एक स्टेट को डिक्लेयर करने। स्टेट का नाम क्या है, इस वेरिएबल का नाम या स्टेट का नाम क्या है, काउंट। और जब इसकी वैल्यू सेट करनी होगी, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कभी भी इक्वल टू करके वैल्यू चाहिए, सेट नहीं कर सकते आप, तो सेट करने के लिए सेट काउंट का इस्तेमाल होगा। फिर मैंने यहाँ काउंट को प्रिंट किया हुआ है, यहाँ प्रिंट होगा ये हर बार। और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट दिया था वो अब की बार मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सेट काउंट। सेट काउंट क्या करता है, जो भी काउंट की प्रीवियस वैल्यू है उसमें प्लस वन, तो देखो ये काउंट की वैल्यू को बढ़ाता रहेगा। पहले जीरो होगा, फिर वन हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे काउंट की जो वैल्यू है वो रियल टाइम प्रिंट होती रहेगी, देखिएगा आप। अभी जो है हमारे पास इनिशियल, देखो काउंट की कोई वैल्यू नहीं है, काउंट की स्टेट खाली है, तो देखो खाली आ रहा है बटन। तो मैं अगर इनिशियल वैल्यू जीरो कर दूं तो अब वहाँ जीरो आ रहा है। और जब हम प्रिंट करेंगे तो देखो काउंट की वैल्यू अब यहाँ हाथ के हाथ प्रिंट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट है वो जब भी कभी एडिट होती है, कभी कोई स्टेट अगर एडिट की जाएगी, ये देखो स्टेट को क्लिक करेंगे, स्टेट याद है कंपोनेंट। जब जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ कंपोनेंट पूरा पूरा री रेंडर हो रहा है, ये पूरा कंपोनेंट दोबारा चल जाता है जब भी स्टेट की वैल्यू को चेंज किया जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं बाहर इस फंक्शन से बाहर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग रेंडर। इसका मतलब है कि रेंडर हो, ठीक है। तो अगर हम चलाते हैं तो वो एक बार रेंडर हो गया। दूसरी बार स्ट्रिक्ट मूड की वजह से, एक चीज होती है स्ट्रिक्ट मूड, अगर आपको याद हो तो हमारे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ होता है, ये रियल टाइम स्ट्रिक्ट मोड। इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो रियल रेंडर है और एक ये अपनी तरफ से टेस्टिंग की लाइब्रेरीज जो है वो कुछ रेंडरिंग करती है। तो अगर स्ट्रिक्ट मोड हटा दूंगा तो एक ही बार आएगा, तो अब इसको हम एक ही बार समझते हैं, ठीक है, एक बार रेंडर हुआ है उसी जब ऐप चली है। जब ऐप चली तो रेंडर हुआ। अब मैं काउंट चलाता हूँ, देखो काउंट बढ़ा फिर रेंडर हो, काउंट बढ़ा फिर रेंडर हो। इसका मतलब क्या है कि ये हर बार पूरा पूरा कंपोनेंट रेंडर होता है, पूरा कंपोनेंट दोबारा चल जाता है अगर उस कंपोनेंट की कोई भी स्टेट जो कि वेरिएबल है हमारा वो चेंज होती है। अगर उसकी वैल्यू चेंज होगी तो पूरा कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। इसकी वजह से फायदा क्या हो रहा है कि रियल टाइम डेटा आपको नजर आ रहा है। तो ये स्टेट को सेट करने का फंक्शन, जब हम स्टेट डिक्लेयर करते हैं तो हम स्टेट का नाम देते हैं, जो भी फंक्शन वेरिएबल का नाम रखना है, और एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके जरिए हम उसको सेट कर सकते हो। और यहाँ पर हम यूज स्टेट के अंदर स्टेट की इनिशियल वैल्यू रखते हैं कि अगर स्टेट की वैल्यू जो भी हमने इनिशियल रखनी है, कुछ नहीं दोगे तो वो खाली चला जाएगा जो कि अनडिफाइंड होता है, कुछ वैल्यू दे दोगे तो वो उसको लेके आगे चले जाएगा, ठीक है। तो इसका फायदा ये है कि अब ये जो वेरिएबल है इसकी बेस पे आप काफी सारे रिएक्ट के अंदर काम कर सकते हो। और ये कई ऐसे बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, जैसे कि अगर मुझे शो हाइड की चीज़ बनानी है तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ कि अगर शो की वैल्यू ट्रू हो तो फिर एक H1 प्रिंट करना, ठीक है जी, बेटा इज हियर। अगर शो की वैल्यू ट्रू मिलेगी तो दिखाएगा, अभी कह रहा है शो है ही नहीं कुछ। मैंने यहाँ पर एक स्टेट बना, मैंने कहा एक स्टेट है शो, और सेट शो करके एक वेरिएबल होगा, एक फंक्शन होगा जो उसको सेट करेगा, और इक्वल टू यूज स्टेट करके मैंने इसको फॉल्स कह दिया बाई डिफॉल्ट। तो ये जब तक फॉल्स है ये H1 नजर नहीं आएगा, तो नहीं नजर आ रहा।
अब मैंने कहा हैंडल क्लिक के अंदर करना, ये हैंडल क्लिक के अंदर मैंने कहा सेट शो, क्या कर देना, पहले ट्रू करके दिखाता हूँ, ट्रू कर। इसका मतलब है कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो डेटा इज देयर, कैसे आया कि अब वो री रेंडर हुआ तो उसके बाद उसको शो की वैल्यू ट्रू मिली, तो ट्रू मिली तो उसने दिखा दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि क्लिक करने पे नजर आया और क्लिक करने पे ही गायब हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कर देंगे कि नॉट शो, शो की वैल्यू सेट करो नॉट शो पे। नॉट शो का मतलब ये अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर, ठीक है। ये बड़ा पर्पज बन गया। अभी देखो क्लिक करेंगे गायब, क्लिक करेंगे नजर आया, क्लिक करेंगे गायब, क्लिक करेंगे नजर आया। क्या हो रहा है, जब भी मैं इसको हैंडल क्लिक को चला रहा हूँ तो वो सेट शो को अपनी इनवर्स वैल्यू पे रिटर्न कर रहा है, जो ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। और जैसे कोई भी स्टेट चेंज होती है, भले वो काउंट वाली हो या शो वाली हो, तो ये कोड दोबारा चल जाता है, पूरा पूरा कंपोनेंट दोबारा चल जाता है। जब कंपोनेंट दोबारा चलता है तो शो की वैल्यू उसको अगर ट्रू मिलती है तो H1 प्रिंट हो जाता है, अगर फॉल्स मिलती है तो H1 प्रिंट नहीं होता। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हमने एक टॉगल बटन बना लिया, ये टॉगल बटन। जो आपने ये शो लिखा है नीचे हाँ, रिटर्न में जो आपने रिटर्न कर, ये सर कोई प्रेस्क्राइब्ड वेरिएबल है या कुछ भी लिख सकते हैं? वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हर वेरिएबल का नाम स्टेट, है ना। हर जो भी सर हमने काम करवाना है उसकी अलग से स्टेट बनानी है। हाँ मतलब आप अगर कोई वेरिएबल रखना चाहते हो और उस वेरिएबल के डेटा की बेस पे आप कुछ रेंडरिंग भी कराना चाहते हो, रियल टाइम में डेटा आपको आउटपुट पे भी चाहिए, तो आप स्टेट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, देखो अभी इसका किसी भी फायदा काम क्या में है। अगर हाँ किसी भी काम में अगर अपडेशन करानी है, हाँ अपडेशन रिक्वायर्ड है, हाँ, तो उसके लिए स्टेट जरूरी होगी। स्टेट ही समझ लो, रिएक्ट के अंदर जो तुम्हारे डेटा पैकेट्स है ना वो स्टेट है, जी जैसे वेरिएबल होता है ना हमारे पास, जी जी जी। बिल्कुल वैसे। अब वेरिएबल के साथ मसला ये है कि जब हम वेरिएबल के अंदर कोई डेटा रख रहे हैं, तो क्योंकि वेरिएबल जो है कंपोनेंट को दोबारा ड्रॉ नहीं करता, तो फिर हमें रिएक्ट का जो बेनिफिट है हॉट रेंडरिंग वाला वो नहीं मिलता कि वो डायरेक्ट आउटपुट दिखा दे। फिर अगर हमें आउटपुट चाहिए तो हमें उसको जबरदस्ती फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके देना पड़ेगा, जो कि यूजलेस बात हो जाएगी, फिर फायदा नहीं है जो हमने बनाया सब हो जाया। तो बेस्ट ये है कि हम स्टेट का इस्तेमाल करें, स्टेट हमारा काम बड़ा आसान कर देती हैं। आगे चल के थोड़े से साइड इफेक्ट भी आएंगे जो कि हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, रिएक्ट के साइड इफेक्ट भी हैं कि जब ये स्टेट स्टेट आप यूज़ करते हैं तो थोड़े से मसले भी होते हैं, वो भी देखेंगे कि उन मसलों को कैसे हल करेंगे। ठीक है, अच्छा है, और राइट, जैसे एक बहुत कॉमन मसला है कि फॉर एग्जांपल हम इसको शो कर रहे हैं और इसको यहाँ कहीं दोबारा अगर मैं फॉल्स से ट्रू कर दूँ और फिर ट्रू से फॉल्स कर दूँ तो वो री रेंडर ही होता रहेगा, क्योंकि बार बार उसकी स्टेट चेंज हो रही होगी। तो खैर ये बात की बात है, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये स्टेट डिक्लेयर करना, इसका सेंटेक्स देख लें। ठीक है, ये स्टेट किस तरह से डिक्लेयर होती है। स्टेट डिक्लेयर करने के लिए आप कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो, स्टेट का नाम देते हो, कॉमा करके सेट स्टेट जो है ये वो फंक्शन है जिससे अपडेट करोगे स्टेट को, और यूज स्टेट का हुक इस्तेमाल होता है, ये इम्पोर्ट होता है, और इनिशियल वैल्यू आप दे देते हो स्टेट की। ठीक है, ये बड़ा बेसिक सा आज का हमारा जो कंटेंट था, इतना ज़्यादा नहीं है। इस पे असाइनमेंट भी दे देता हूँ, मसला नहीं है। अच्छा, क्योंकि पहला सर वेरिएबल है ये इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, और जो दूसरा है वो अपडेटेड वैल्यू के लिए। चारू जरा जोर से बोलोगे प्लीज, मैंने अपना पंखा तक बंद कर दिया लेकिन आपकी आवाज़ आ नहीं रही मुझे। मैं कह रहा हूँ कि जो पहला वेरिएबल है वो हाँ हाँ मतलब ये कह सकते हैं कि पहला जो वेरिएबल है वो वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए है, और जो दूसरा है वो अपडेटेड वैल्यू के लिए। हाँ, ये वेरिएबल का नाम है और ये फंक्शन है जो उसको अपडेट करेगा। सेट शो वाला जी, ठीक है। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल कुछ और अगर हमने बनाना है, वैसे तो खैर ये इतनी एग्जांपल भी बहुत है इसके लिए। सो हम रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। फॉर सपोज अब आपका असाइनमेंट बन जाएगा, मैं छोटा सा खुद कर देता हूँ फिर आप लोग कर लेना, कि लेट्स से एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, कैलकुलेटर कैसे बनेगा, मैंने कहा भाई कैलकुलेटर बनाते हैं।
ایک मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, और उसकी वैल्यू में मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल एक ANS करके एक वेरिएबल ले लूंगा मैं, और ये मेरा, ठीक है, दिस इज माय इनपुट बॉक्स। फिर मैंने कहा एक इनपुट टाइप बटन, और उस बटन की वैल्यू जो है वो मैंने लिख दी लेट्स से 1। अच्छा, इसमें भी एक एरर भी है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हाथ के हाथ। ये एक कांस्टेंट बना लेते हैं हम। ओके, सही नहीं? तो ये एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया और एक बटन आ गया। तो हम थोड़ा सा, अब इसका UI आप अच्छा कर लीजिएगा, मतलब मैं तो वैसे ही एक लाइन ब्रेक लगा के काम कर रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा अच्छा UI बनाएगा। अब ये एक बटन है, और मैंने इसके ऑन क्लिक पे मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल हैंडल नंबर, इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो जब इस बटन पे क्लिक होगा तो हैंडल नंबर चल जाएगा, ठीक है। हैंडल नंबर एक फंक्शन बना लेंगे हम। मैंने कहा फॉर एग्जांपल हैंडल नंबर फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन किस पर, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि सेट आंसर को बराबर करना है आपने। अगर 1 है तो 1 के बराबर करना है, तो ये देखो 1 के बराबर कर देगा। अगर मैं क्लिक करूंगा तो 1 वहाँ पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो स्टैटिक हो गया, इसको डायनेमिक करना है। डायनेमिक कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे भाई ये जो बटन है ना, क्योंकि अब सारे बटन एक जैसे ही होंगे, ये देखो 2 का बटन भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना, और 3 का बटन भी ऐसे ही होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसने हिट किया इस फंक्शन, ठीक है, ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस इवेंट के आर्ग्यूमेंट में, ये फंक्शन है, इसके आर्ग्यूमेंट में एक इवेंट का वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। ये एक डिफॉल्ट कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट। इससे क्या होता है, इससे हम पता कर सकते हैं इवेंट किसने रेस किया। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करोगे कि भाई इवेंट किसने रेस किया, तो अब देखो ये 3 मेरे बटन है जो सेम ही है, लेकिन वैल्यू इनकी चेंज है, और ये तीनों ही इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अब देखो कंसोल में पता चलेगा कि किसने इवेंट रेस किया, ठीक है जी। मैं यहाँ आया और मैंने 2 को प्रिंट किया तो बता रहा है भाई इसने इसने रेस किया है, ठीक है। ये क्या है, ये एक इनपुट टाइप है, और उसकी काफ़ी सारी डिटेल भी मिल रही है, ठीक है। क्लिक दबाया उसने और सारी बातें। अब अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ 3 को, तो वो बता रहे 3 ने अब रेस किया है। फिर 1 को क्लिक करता हूँ तो 1 रेस किया है। इसमें अब पता कैसे चलेगा कौन था वो? तो इवेंट रेस करने वाले का डॉट टारगेट पता कर लेंगे। ये शायद मैंने पहले भी बताया। अब हमें रियल में पता चलेगा कि किसने इसको हिट किया, ठीक है। तो देखो ये आ गया, ये 3 ने हिट किया, ये 2 ने हिट किया, और ये 1 ने हिट किया। तो अब इसको तीनों का अलग अलग पता चल रहा है कि इस इवेंट को रेस करने वाला कौन है, ठीक है। तो अब इसमें से देखो, इस इवेंट में से हम क्या ले सकते हैं? इसमें से हम टाइप ले सकते हैं, वैल्यू भी ले सकते हैं। तो हम कहते हैं कि टारगेट डॉट वैल्यू उठा दो, तो हमें वैल्यू आएगी। तो उसको क्लिक करेंगे 3 मिलेगा, इसको करेंगे 2 मिलेगा, इसको करेंगे 1 मिलेगा, ओके। तो वैल्यू मिल रही है। हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को रख देंगे कहाँ? लेट्स से सेट आंसर के अंदर। तो देखो ये अगर 3 दबाया तो 3 चला गया, 2 दबाया 2 चला गया, 1 दबाया तो बच्चा, ठीक है। इस तरह से आप बटन क्लिक के ऊपर 3 बटन्स को हमने हैंडल कर लिया, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इब्तदा कर रहा था, अब आपने खुद बनाना है। मतलब यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, आइडिया दे दिया। अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपने एक रिएक्ट के ऊपर कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, खुद से। कोशिश करेंगे बन जाएगा, सही है। एक 9 बटन वाला जो कैलकुलेटर होता है हमारा, 10 बटन वाला, और उसके अंदर में प्लस माइनस के ऑपरेटर, ये वाला कैलकुलेटर आपने बनाना है। मैंने ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको बना के दिखाया था, ठीक है। अब मैं ये नहीं बना रहा, आप ये खुद बनाएंगे। आप पहले खुद ट्राई करें, हर तरीके से खुद फंक्शन बनाएं। 2 स्टेट के अंदर ये काम हो सकता है, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ये 2 स्टेट्स के अंदर काम हो सकता है। आप चाहे 3 स्टेट 4 स्टेट में भी कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है। बट आप इसको करें ये खुद से रिएक्ट के ऊपर
स्टेट्स और फंक्शन का इस्तेमाल करके कंपोनेंट्स बनाए। ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच। आज जो है मैं दूसरी मीटिंग नहीं कर रहा। रीज़न उसकी ये है कि जो हमारा टॉपिक है वो साइड इफेक्ट्स है, तो वो थोड़ा सा बढ़ेगा टॉपिक, तो मैं आज उसको अभी नहीं स्टार्ट करना चाह रहा। और इंशाल्लाह ये है कि कल जो है, कल से मुराद अगली क्लास में हम उसको, फिर हम पहले फैच एपीआई को पढ़ेंगे, उसकी वजह से एक साइड इफेक्ट आएगा, तो फिर हम उस साइड इफेक्ट को हैंडल करना सीखेंगे, उसके लिए हम एक और हुक पढ़ेंगे। तब तक आप लोग जो है वो अपने असाइनमेंट करें। असाइनमेंट इस तरह से करें कि आप जो है वो रिएक्ट के ऊपर स्टेट के साथ किए जाने वाले असाइनमेंट सर्च कर लें, आप चैट जीपीटी से लिखवा लें, आप गूगल कर लें। ठीक है। और मैंने एक तो आपको बता दिया, कैलकुलेटर बना लें। एक एज एज कैलकुलेटर बना लें कि भाई वो बंदा अपनी डेट बताए और आपका सिस्टम उसकी एज बता दे। आप कोई टैक्स कैलकुलेटर बना लें, कोई ज़कात कैलकुलेटर बना लें। ठीक है, इस तरह की चीज़ आप करें। राइट। जी, क्लास नेक्स्ट वीक होगी अब। ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच। ओके। अल्लाह हाफिज़।